Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta, MBA Finance and Chartered Accountant qualified. I am explain and PhD holder. I am explain this topic सी फाइनल स्टूडेंट्स के लिए वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे इसके बारे में हम बता रहे ऑडिटिंग के पार्ट्स को बता रहे हैं। अंकेक्षण ऑडिटिंग मीन्स क्या होता है? अंकेक्षण अंकेक्षण के बारे में आपको बता रहे हैं। आप जब आप सीए फाइनल कर जाएंगे तो आप ऑडिटर बन सकते हैं, किसी भी कंपनी का ऑडिट आप कर सकते हैं। इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं जो सीए फाइनल में बार बार आता है। कमेंट फ्रॉम द कैश बुक शो ए हुज कैश बैलेंस ऑन हैंड द कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर। इसका आंसर 4 मार्क्स में दिया गया। इंटरमीडिएट सीए फाइनल और इंटरमीडिएट 2003 में पूछा गया है। मेंटेनेंस ऑफ हुज कैश बैलेंस का मेंटेनेंस के बारे में आप कैसे जानेंगे, इसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। कैश बैलेंस इज मेंटेन टू मीट टू डे ऑपरेशनल नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। माने कैश बैलेंस जो होता है वो डे टू डे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरत होता है। सो द ऑडिटर हैज़ टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजरल particularly having regard to the fact that maintaining such huge balance is highly prone the misappropriation other form of fraud. Accordingly, it is in tightly is consistently maintaining huge cash balance which is not justified by its operational requirement needs the guidance notes on audit of cash and bank balance recommended that auditors should carry out surprise verification of cash more frequently to ascertain whether an actual cash on hand agree with the balance as shown by the books. If cash on hand is not in agreement, cash on hand not in agreement with the balance as shown in the books, he should seek explanation from the senior official of the entity. Entity means क्या होगा? Business. In case any material difference is not the satisfactory explained, the auditor should state this fact appropriately in the audit report. In any case, he should satisfy himself regarding the necessity for such large balance having regard to normal working requirement of the entity. The entity may also be advised to deposit the major part of cash balance in the bank or at reasonable intervals. इसका आंसर यही माना जाएगा कि रीजनेबल इंटरवल्स किया जाएगा कैश बैलेंस का। कमेंट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड क्वेश्चन आता है बार बार सीए फाइनल में। कमेंट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉपरली डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री रेस्ट विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसी को बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 10 नंबर में क्वेश्चन आता है सीए फाइनल ऑडिटिंग में। यह ऑडिटिंग का पार्ट आपको डिस्कस कर। द गाइडेंस नॉट एन ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री स्पेसिफाइड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉपरली डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री रेस्ट विथ ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। देयरफॉर इसलिए इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट the entity to ensure that the inventory includes the financial information and physically in existence and be present all owned by the entity. The management can satisfy this responsibility by carrying out appropriate procedures such as verification all item of inventory at least one in every financial year. The auditor is expected to examine the adequacy of the method एंड प्रोसीजर ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। ऑडिटर क्या करता है? इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। ये फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है? फॉलो बाय द एंटिटी। उसके बाद एंटिटी मीन्स क्या होता है? बिजनेस। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाई
defective, damaged, absolute, excess and so slow moving item is well designed and operate properly. This responsibility of the management is not reduced even where the auditor attained any physical count of inventory in order to obtain audit evidence. The entity usually maintains details stock record in the forms of stored stock ledger showing in respect of each major item, the receipt, issue and balance. The extent of examination of these record by an auditor with reference to the relevant basis document, goods received notes, inspection, इंस्पेक्शंस रिपोर्ट इंस्पेक्शन मीन्स होता है जांच पड़ताल करीब मटेरियल इशू नोट्स मटेरियल जो इशू हुआ उसका नोट्स होना चाहिए बिन कार्ड्स होना चाहिए डिपेंड अपॉन मीन्स क्या होता है निर्भर करता है द फैक्ट द सरकार फैक्ट मीन्स तथ्य सर्कमस्टांसेज ऑफ द ईच केस प्रत्येक केस की परिस्थिति सर्कमस्टांसेज मीन्स क्या होता है परिस्थिति इनवैल्यूएशन एस्पेक्ट कंप्लाइंस मीन्स क्या होता है रूल ए रेगुलेशन इसका दूसरा इंग्लिश क्या होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म उसका भी मतलब रूल एंड रेगुलेशन होता है विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड आल्सो बी इंश्योर। तीसरा क्वेश्चन फिर बार इसका हम आपको आंसर बताएं। तीसरा क्वेश्चन का एन ऑडिटर व्हाट वुड यू डू इन द फ्लोइंग सिचुएशन किस सिचुएशन में ऑडिटर पहला सिचुएशन बताया द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी टू बी चेंज SLM बेसिस टू W रिटेन डाउन बेसिस ऑफ द करेंट ईयर जब मशीनरी का प्लांट का डिप्रिसिएशन का मेथड SLM बेसिस को से चेंज होकर रिटेन डाउन वैल्यू बेसिस पर यदि करेंट ईयर में होता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है द कंपनी हैज़ सेंड द सेमी फिनिश्ड गुड्स टू द थर्ड पार्टी फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग विच इज लाइंग विद द एंड ऑफ द ईयर। अब चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन एक ऑडिटर्स के लिए क्या मेथड अपनाना होगा इसके बारे में जिक्र किया है CA फाइनल में ये बार बार क्वेश्चन आता है 30 नंबर में आता है। चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन नॉर्मली स्पीकिंग द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज अप्लाइड नॉर्मली डिस्कशन इज अप्लाई कंसिस्टेंटली टू प्रोवाइड comparability of the result of the operation of the enterprises for period a charge from the method of providing depreciation to another is made only if the adoption of new method is required by statute for compliance with the accounting standard. It is considered that the change would result in more appropriate presentation or presentation of financial statement of the enterprise. Therefore, the auditor must ensure that the change the method of depreciation on plant and machinery for SLM and SLM straight line method और WDV का मतलब था रिटेन डाउन वैल्यू मेथड बेसिस फॉर द करेंट ईयर इट मेड इन अकॉर्डेंस देयर विथ व्हेन सच ए चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज मेड डिप्रिसिएशन इज recalculated in accordance with the new method for the date of the assets coming into use. Further, it should be ensured that the deficiency means होता है कमी घट जाना since change in the for SLM to return down value arising to be adjusted in the year of change by way of charge to the profit and the loss account. We may also ascertain that the change in the method, the effect thereof on the profit of the entity is qualified and disclosed. If it is not done by the management, the auditor has to bring it to the notice of the shareholder through qualification in the audit report. Shareholders को वो audit report में भेजेगा. सेमी फिनिश गुड्स लेइंग विद द थर्ड पार्टी बी पॉइंट को करा सेमी फिनिश गुड्स के सेंस में ऑडिटर क्या अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है. सेमी फिनिश गुड्स बीइंग कंपोजिट पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री. सेमी फिनिश गुड्स क्या है? इन्वेंट्री का पार्ट है. नॉर्मली कंस्टिट्यूट द सिग्निफिकेंट आइटम इन केस ऑफ एनी एंटिटी. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंश्योर दैट inventory which are owned by the enterprise exists on that valuation thereof the all proper. Since the semi-finished goods belonging to the company, it is necessary to ensure that the same have been included for in valuation of inventory. The auditor should also obtain direct confirmation about the quantity of inventory lying with the processors at the end of the year. Also, the auditor should see that valuation has been made properly with reference to a stage of completions in respect of work in progress, inclusive of the expense incurred in sending the goods processing
goods for processing. In case amount happens, the material such stock may be disclosed separately stock with processor. यानी सेपरेटली वो स्टॉक्स को प्रोसीजर करेगा और वर्क इन प्रोग्रेस जो काम अभी बाकी है उसको वो एडजस्टमेंट करेगा. ऑडिटर गिव योर कमेंट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फ्लोइंग्स. बैलेंस कन्फर्मेशन फॉर द डेटर क्रेडिटर कैन ओनली द ऑब्टेन फॉर बैलेंस स्टैंडिंग इन द देयर अकाउंटिंग ऑफ द ईयर इन. अकाउंटिंग जब ईयर समाप्त होता है उसमें जो डेटर क्रेडिटर का बैलेंसिंग कन्फर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे ऑडिटर अपना ऑडिट माइंड लगाता है और उस अनुसार से वो ऑडिट रिपोर्ट फाइल करता है. द मैनेजमेंट हैज ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फॉर द एक्चुरी रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर द गारंटी पेबल टू द एम्प्लॉय. एक्चुरी एक पोस्ट होता है जो UDC LDC जो एग्जामिनेशन लेती है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा यह अपॉइंटमेंट होता है. फिक्स असेट्स हैव बीन रीवैल्यू द रिजल्टिंग सरप्लस मीन्स हैव बीन एडजस्टेड अगेंस्ट द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस. लॉसेस को कैसे हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, पहले तो ऑडिटर्स माइंड में पहला आंसर को बैलेंस कन्फर्मेशन कैसे किया जाता है. कन्फर्मेशन ऑफ बैलेंस का कन्फर्मेशन कैसे करें. डायरेक्ट कन्फर्मेशन ऑफ बैलेंस फॉर डेटर क्रेडिटर से आप डायरेक्ट कन्फर्मेशन बैलेंस कैसे करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंस स्टैंडिंग इन देयर अकाउंट एट द इंड इज. जब अकाउंटिंग ईयर जब मेरा इंड होता है, परहैप्स द बेस्ट मेथड ऑफ द असर्टेनिंग वेदर द बैलेंस आर जेन्यून एक्यूरेटली स्टेटेड. एक्यूरेटली स्टेटेड मीन्स क्या होता है, एक्यूरेटली चुनना, अनडिस्प्यूटेड, पर्टिकुलरली वेयर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वीक. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक रहेगा तो उसका हम क्या करेंगे, डेटर क्रेडिटर को देखेंगे, आउटसाइडर पार्टी क्या है, इसका इंटरनल कंट्रोल को जानेंगे. यदि आउटसाइडर पार्टी इसका कमज़ोर है, माने ये पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कंपनी का आर्थिक स्थिति सही नहीं है. तो ऑडिटर एज द चार्टर अकाउंटेंट जब CA फाइनल करते हैं, जब COP मिलता है तो हम किसी भी कंपनी का ऑडिटर बन सकते हैं. यदि कोई भी कंपनी का जब हम ऑडिटर बनते हैं तो हम उसी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं. यदि हम दूसरे कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते या हम अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, यदि किसी कंपनी, या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या COP आपको मिल गया तो आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आप किसी कंपनी का ऑडिटर बनिए, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाइए, चाहे अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट में जाइए. ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप CA करने के बाद क्या कौन सा क्षेत्र को आप चूज करते हैं. उसी प्रकार इंटरनल कंट्रोल को वह देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल क्या है कंपनी का. द कन्फर्मेशन डेट मेथड रिक्वेस्टिंग कन्फर्मेशन एट द डिटरमाइनिंग बाय द ऑडिटर गाइडेंस नॉट ऑन ऑडिट ऑफ डेटर लोन्स एंड एडवांस इशू बाय द इंस्टीट्यूट रिकमेंडेड दैट द डेटर्स मे बी रिक्वेस्ट टू कन्फर्म द बैलेंस आइदर. कहने में अगर कोई भी लोन इन एडवांस देते हैं तो वो डेटर से कन्फर्मेशन होगा कि सही में ये डेटर पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, भविष्य में कि बैड डेप्स कर लेगा. तो कन्फर्मेशन बैलेंस को हम देखेंगे, इसका इंटरनल कंट्रोल क्या है, इसको चीज़ को देखेंगे. सब्सटेंस ऑफ फॉर्म रिलाइज कर रहा है कि नहीं, कंसिस्टेंसी है कि नहीं, एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड कंटिन्यूटी. इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, पहले एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड कंटिन्यूटी. इस चीज़ को देखेंगे. CA फाइनल में ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसी पे क्वेश्चन. अब एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट का डेट देखेंगे. एट एन ईयर ऑफ द सिलेक्टेड डेट विद द रीजनेबल क्लॉज डेट ऑफ बैलेंस शीट द डेट शुड बी सेटल्ड by the auditor in consultation with the entity, where the auditor decides to confirm the debtor at a date other than balance sheet date. He should examine the movement debtor balance occur between the confirmation date, balance sheet date, obtaining sufficient evidence satisfy himself that debtor balance stated balance sheet are not materially misstated. बैलेंस शीट जो है मेरा मैटेरियली मिस स्टेटेड नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल होना चाहिए, एस्टिमेटेड होना चाहिए, एस्टिमेटेड नहीं होना चाहिए. तो डेटर आपको बैलेंस शीट बताएंगे जब आप CA फाइनल में जाएंगे. CA फाइनल स्टूडेंट के लिए डेटर बैलेंस शीट बहुत ही मायने रखता है. डेटर बैलेंस शीट पे हम पूरा डेटर मैनेजमेंट करते हैं, क्रेडिटर कितना है, आउटसाइडर क्रेडिटर क्या है, उसका एक अकाउंटेंसी होता है जो हम उसको पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट भी डेटर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाती है. Therefore, it is not necessary that balance debtor creditor should necessarily be verify the end of year only. In fact, order to incorporate the
एलिमेंट मीन्स क्या होता है? तत्व। उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके तत्व क्या है। उसके बाद सरप्राइज, द ऑडिटर में कंसीडर, सरप्राइज द ऑडिट कंसीडर मीन्स विचार करना, डिफरेंट कन्फर्मेशन डेट प्रोडिकली, एडजस्टमेंट हो गया। दिसंबर 31 एक कट ऑफ डेट इन 1 ईयर, इन जून 30 another year, and so on. Therefore, the statement that balance confirmation for debtor and creditor can only be obtained for balance standing in their account of year end is not correct. यानी जब अकाउंटिंग ईयर यदि इंड हो रहा है, यदि करेक्ट नहीं है तो इसका इंटरनल कंट्रोल क्या हो गया? वीक हो गया। अब आए सर्टिफिकेट ऑफ एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से हम सर्टिफिकेट कैसे लेंगे? द कंपनसेशन ऑफ gratuity liability payable to employee each depends upon the several factors such age for the employee, expected span of service in the organization, life expectancy of the employee, privileged economic environment. It thus is प्रकार give rise to the uncertainty in the determination of provision of liabilities. Under such circumstances, the management is required to make an assessment and estimate the amount of provision. In view of this, the management may engage an expert in the field of assist. Assist means क्या होता है? सहायता करना, them arriving of fair estimation of the liabilities. Therefore, it is accepted auditing practice using the work of expert SAP 9 on using the work of expert also sales that expert may be engaged implied by the client. It is further required the auditor assess skill, the competence, the objectivity of expert amongst other factors, evaluate the work expert independently to conclude whether not rely upon the certificate obtaining management for the actuary. Therefore, the auditor must follow the requirement SP9 before relying upon the certificate obtained by management from the actuary. एक्चुअली सर्टिफिकेट मैंने एक्चुअली जो होता है वो हमें सर्टिफिकेट एक्सपर्ट ओपिनियन बनाकर देता है कि हमारा ग्रेचुटी लायबिलिटीज इम्प्लाई के फेवर में क्या आया, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस क्या था, कंसिस्टेंसी क्या था, इस सब को ये ऑडिट एक्सपर्ट सर्टिफिकेट एक्सपर्ट इसको चेक करता है, जिसका नाम होता है एक्चुअरी। एक्चुअरी एक पोस्ट होता है जो बीकॉम करने के बाद, बीकॉम या एमकॉम या एमबीए करने के बाद आप एक्चुअरी का पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो ओनली फॉर कॉमर्स का ही लड़का एक्चुअरी ऑफिसर बनता है, जो एस्टिमेटेड करता है कि मेरा एक्चुअल इंटरनल कंट्रोल क्या है। वो हर एक चीज़ को देखता है कि इसका कंपनी का लिक्विडेशन क्या है, कंपनी लिक्विडेशन में जा सकती है कि नहीं जा सकती है, वो एक्चुअरी ही डिसाइड करता है। यह गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट होता है जी, वह बहुत अच्छा पोस्ट होता है एक्चुअली। इसका कम से कम सैलरी 9 लाख 8 लाख से कम सैलरी नहीं होता है। ये ओनली फॉर कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही इसमें जा सकते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, अब फिक्स एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना। द रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स इज नॉर्मली एक्सेप्टेड practice which involve writing of the book value of fixed asset. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपको में फिक्स एसेट्स का हम रिवैल्यूएशन करते हैं। Required that increase the net book value arising on revaluation of the fixed assets is normally credit direct owner interest under the heading of revaluation reserve and is regarded as not available the distribution. Thus, creation of revaluation reserve does not result into any cash inflow and represented the unrealized gains. However, brought forward losses are in nature of revenue loss. As a matter of prudence, revenue loss can be adjusted against revenue reserves only, not the capital reserves. Therefore, the accounting treatment followed by the entity is not correct and auditor should qualify the audit report by the mention the above fact. अब आता है आपके पास स्टेट, 5वां क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं से फाइनल में। स्टेट बेनिफिशियरी ड्यूटी एंड ऑडिटर विद रिगार्ड इज फॉलोइंग। पहला तो आपको माने ऑडिटर्स का ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, उसको ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना। नो डिप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2008 इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेयर बस परचेज ड्यूरिंग द ईयर and kept ready the company for use a standby ground of this which during the year। ये आपको ये क्वेश्चन 5 मार्च में आया है। ए सम ऑफ रुपीज़ 10,000 इन रिसीवर फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, माने 10 लाख रुपया जो है इंश्योरेंस कंपनी से वो रिसीव करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम के संदर्भ में फॉर द लॉस ऑफ गुड्स ऑफ टाइम। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ 8 लाख।
8 लाख का जो कॉस्टिंग का जो माल है वो रास्ते में रह जाए। ट्रांजिट मीन्स क्या होता है, रास्ता में रह जाना। वो माल रास्ते में है जो गुड्स इन लॉस है, क्लेम किया था। अमाउंट इज क्रेडिट टू द परचेज अकाउंट। आपको परचेज अकाउंट में कैसे कितना अमाउंट क्रेडिट करिएगा, ये ऑडिटर किस यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑडिटर किस बेसिस पे डिसीजन लेगा। ये भी आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया सीए फाइनल में। कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर अल्ट्रेशन अमाउंटिंग ₹60,000 सेल्फ ओन द फैक्ट्री प्रीमिसाइज एज द बी चेंज द बिल्डिंग प्रीपेयर्स। कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर जब का अल्ट्रेशन मीन्स क्या था, परिवर्तन करना। जैसे 60,000 का अमाउंट का हम कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर का अल्ट्रेशन किए। सेल्फ ऑन द फैक्ट्री प्रीमिसाइज, फैक्ट्री प्रीमिसाइज में फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है अपना है, हैज़ बीन चार्ज बाई बिल्डिंग प्रीपेयर। बिल्डिंग रिपेयर्स पे क्या चार्ज हुआ, ये 4 मार्क्स में आपको ऑडिट रिपोर्ट में बताना है ऑडिटर को। ए लॉस ऑफ ₹2 लाख ऑन अकाउंट ऑफ इम्बीजमेंट ऑफ कैश वाज सफर्ड बाय द कंपनी एंड इट इज़ डेबिट द सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट को उसने डेबिट किया था, उसके बाद कंपनी द्वारा जो भी कैश सफ़र हुआ था इंगेजमेंट अकाउंट, तो ₹2 लाख उसको लॉस हुआ था। इसका आंसर आपको बताना। डिप्रिसिएशन और स्टैंड बाई एसेट्स क्या होता है। अमाउंटिंग रिसीव फॉर इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से आप कितना अमाउंट रिसीव किया। कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर का अल्ट्रेशन, कैसे अल्ट्रेशन मीन्स परिवर्तन होता है, कंपनी अपना कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है। इम्ब्लिजमेंट ऑफ कैश, इम्ब्लिजमेंट पे ऑफ कैश क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इम्ब्लिजमेंट ऑफ कैश क्या होता है, उसके बाद आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डिप्रेशन एंड फ्लैक्चुएशन इन वैल्यू क्या होते हैं, डिप्रेशन का फ्लैक्चुएशन वैल्यू कैसे निकाला जाता है। बिल्डिंग्स क्या होते हैं, पेटेंट राइट्स क्या होते हैं। फिर से पेटेंट राइट को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पेटेंट राइट बिल्डिंग्स को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। बिल्डिंग्स एग्जामिनिंग द टाइटल डीड्स और बिल्डिंग्स टू सी वेदर द क्लाइंट होल्ड्स द टाइटल ऑन द बैलेंस शीट डेट इफ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन मॉर्गेज। अगर प्रॉपर्टी पर हम मॉर्गेज हुआ है, द टाइटल डीड विल बी इन द पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज। टाइटल डीड जो होगा मॉर्गेजी के पोजीशन में होगा, जो मॉर्गेजी है। फॉर हु एट सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन टू डेट इफेक्ट। उसका जो सर्टिफिकेट जो होगा वो उस डेट को इफेक्ट माना जाए। वेरी द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बाई रेफरेंस द डीड ऑफ कन्वीनियंस इफ द building is constructed by the client. Verify the original cost by the reference to the cost as record in books of accounts the year in which construction was the completed. जब मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड हो जाएगा, इस सिचुएशन में मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्डेड किया जाएगा और उसको देखा जाएगा। सी पॉइंट, वेरीफाई द अप्रोप्रिएट डिप्रिसिएशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अगेंस्ट द बिल्डिंग। बिल्डिंग्स के अगेंस्ट में भी जो भी अप्रोप्रिएट डिप्रिसिएशन होगा वो देखा जाएगा। इन केस ऑफ नो डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन द बिल्डिंग पर कोई केस में डिप्रेशन प्रोवाइड नहीं है, ए नोट द इफेक्ट शुड बी गिवन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रिसिएशन को चार्ज कर देंगे। सी द ऑपरेशन लीज डीड। अब लीज डीड का अप्रोप्रिएट देखते हैं। कोई भी हम लीज बनाते हैं उसका डीड बनाते हैं। डीड मीन्स क्या होता है, एग्रीमेंट। इफ द बिल्डिंग इज लीज होल्ड्स पे बिल्डिंग टू असर्टेन द कॉस्ट। एमोटाइजेशन मीन्स क्या होता है, उसका एमोटाइजेशन करना, माने उसको डिप्रिसिएशन का ही पार्ट होता है एमोटाइजेशन। एसो इंश्योर डेट द कन्वेंट्स द लीज डीड हैव बीन फुलफिल बाय द क्लाइंट। एमोटाइजेशन के अंतर्गत उसको फुलफिल करना पड़ेगा, एमोटाइज करना पड़ेगा। सी डेट द बिल्डिंग हैव बीन वैल्यू एट कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन इफ एनी रिवैल्यूएशन हैज टेकन प्लेस। सी बेसिक रिवैल्यूएशन एंड इंश्योर डेट द डिस्क्लोजर सेम हैज बीन मेड। In case of company, the requirement of Schedule 6 have been complied with. Complied means क्या था, rule and regulation. See that the relevant picture of buildings have been entered, fixed asset recorded maintenance by the client. Client द्वारा इसे maintenance record करना पड़ेगा, fixed asset, उसका एक रजिस्टर बनाना होगा, fixed asset रजिस्टर मेंटेन करना होगा ऑडिटर को, और उसका हर एक वैल्यूएशंस को निकालना पड़ेगा। लीज एग्रीमेंट किया या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अपनाया, स्लेमन बेटमेंट, इस हर एक चीज़ को ऑडिटर को चेक करना होगा। पेटेंट राइट के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, हम आपको चैप्टर जो डील किए हैं वो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का चैप्टर को डील किए हैं कि कैसे हम वेरिफिकेशन करेंगे, कैसे एसेट्स लायबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए। और ऑडिटिंग पे हम कुछ और चैप्टर पे, ऑडिटिंग पे हम बहुत सा चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जैसे सेल्फ फाइनेंसिंग
मैनेजमेंट होता क्या है इसके बारे में पता। ऑडिटर जब एजीएम अटेंड करता है, एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करता है, तो उस सिचुएशन में पोरेक्सी का क्या रोल होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग होता है तो उसमें पोरेक्सी क्या डिसीजन लेती है, वो सबको सीएनएफए क्या होता है, सीओआर क्या होता है, कितने दिन में कोई कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि ऑडिटिंग जो है अकाउंटिंग से डायरेक्ट लिंक करता है। ऑडिटिंग का जो मेन जो मकसद ये होता है, ऑडिटिंग पढ़ने से, ऑडिटिंग लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमको ये जानना चाहिए कि ऑडिट जो हम बनाते हैं, कोई भी सीए होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, वो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं कंपनी का, अंकेक्षण जिसको क्या कहते हैं हिंदी में अंकेक्षण। वो देखती है कि हमारा ये ऑडिटिंग जो है, जो ऑडिटिंग कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑडिट करवाती है। अब जब तक वो ऑडिट नहीं कराएगी तो उसका जो फाइनेंशियल है, उसका फाइनेंशियल सिस्टम है, वो क्लैप्स कर जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। इसलिए ऑडिट कराना साल में एक बार ऑडिट कराया जाता है। ऑडिट कराने से आप कंपनी अपना अस्तित्व को बनाए रखती है और उससे हमें ये पता चलता है कि इसका इंटरनल कंट्रोल क्या है और एक्सटर्नल कंट्रोल क्या है। इंटरनल कंट्रोल जानने के लिए हमको क्या क्या पार्ट्स को पढ़ना है। इंटरनल कंट्रोल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कल हम जिक्र किए थे, शेयर होल्डर्स को भी जिक्र किए थे। तो प्रोमोटर्स कंपनी में क्या होता है, कंपनी और प्रोमोटर्स डुअल एस्पेक्ट होता है। कंपनी प्रोमोटर्स डुअल एस्पेक्ट होता है, मैंने प्रोमोटर्स जैसे कोई कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, चाहे कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है, तो उसके प्रोमोटर्स अलग होते हैं और कंपनी अलग होता है। प्रोमोटर्स को हम कंपनी को क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, और कंपनी उसका बच्चा होता है। तो प्रोमोटर्स और कंपनी दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। लेकिन आप पढ़ते होंगे कि शेयर होल्डर मीटिंग होगा, शेयर होल्डर में शेयर ही कंपनी का एक्चुअल मालिक होता है, वो इक्विटी शेयर वाले, लेकिन वो शेयर का मालिक है, माने वो जितना शेयर स्टेक किया उसका वो ऑनर है, न कि उसके एसेट्स का वो ऑनर है। डेट्स ऑल। अगले वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ऑडिटिंग के बहुत से पार्ट्स, और अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग दोनों एक साथ हम लेकर चलेंगे। अकाउंटिंग ऑडिटिंग एक दूसरे से इंटरलिंक है। अब आपको एसएलएम मेथड अभी डिस्कस किए थे, स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन, अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चेंज हो गया, तो उसका एसेट्स का वैल्यूएशन निकालें। एसेट का वैल्यूएशन में हम क्या देखते हैं, उसका इंटरनल कंट्रोल। लीज मॉर्गेज होगा, आपको लीज समझना पड़ेगा, लीज क्या होता है, हाइपोथिकेशन क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, सब में डिफरेंस समझना। प्लेज क्या होता है, ग्रीवी क्या होता है। तो ये जब तक आप इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन नहीं समझिएगा तो अकाउंटिंग तो आप बना ही नहीं पाइएगा, क्योंकि अकाउंटिंग एक दूसरे से इंटरलिंक है। उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ऑडिटिंग पे कमांड करना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग पे कमांड करना पड़ेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझना पड़ेगा। तो एक दूसरे से लिंक है, और एडजस्टमेंट तो है ही, आपको एडजस्टमेंट तो साथ साथ पढ़ना ही पड़ेगा। डेट्स ऑल। अगले वीडियो में हम आपको ऑडिटिंग के कुछ पार्ट्स को डिस्कस करें। डेट्स ऑल।